Okay, we are continuing with carboxylic acid acidic strength. The effect of hybridized carbon. sp carbon, if carboxylic group is attached to sp carbon, it is more stronger compared to phenylic मतलब benzene aromatic sp2, vinylic sp2 and normal sp3. तो aromatic sp2 ज्यादा strong होगा क्योंकि यहाँ पे resonance effect ज्यादा produce होगा compared to normal straight chain sp2 carbon and then sp3 carbon. So this one I was talking about, you have to remember this, so they'll give you different compounds like this, and then you have to see the carbon. sp carbon है कि sp2 aromatic वाला है, sp2 normal है, फिर sp3 है, and they give you in HSE 2 acids they give you, and they tell you compare the strength and tell me tell which is stronger and why. तो 2 acids देंगे तुमको और उनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है और क्यों एक्सप्लेन करना है, तो 1 और 2 मार्क के लिए तो तुमको बोलना है, समझो अभी ये दोनों दिया है, ये दोनों दिया है, तो बोलोगे sp carbon, a carboxylic group is attached to sp carbon, so therefore it is more acidic compared to carboxylic group attached to sp carbon of aromatic ring, sp2 carbon of aromatic ring, वैसे तो ये stronger है इससे ऐसे. So they will give you two acids, you have to compare which is strong and you have to give reason. तो रीजन में यही लिखना है जो यहाँ पे लिखा है बस खाली, है ना. देखो यहाँ पे लिखा ना, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ फिनाइल और विनाइल ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ एसिड्स विच इज ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन. ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन वैसे, ठीक है. हाँ, uses of carboxylic acid. Formic acid is used in rubber, textile, dyeing industries. Acetic acid is used as vinegar. Okay. Then it is adipic acid हम लोग पॉलीमर करेंगे, उसमें नायलॉन 6,6 बनाने में काम आएगा. Then ester of benzoic acids are used as perfume. Most of the esters are used in perfumes. Sodium benzoate is food preservative. Yeah, then I'll show you. Okay, I'll show you last slide also. ये वाला देख लो, higher fatty acids are used for making soaps and detergents. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट वाला बताता हूँ. आज पूरा जितना स्क्रीनशॉट लिया है, you have to write it down all. Just don't keep it at screenshots only. Write it down. I'll ask anybody randomly to post your notes whether you all have written or no. हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी लास्ट वाला दिखाता हूँ. इसका ले लो. This is also very important, I'm telling you. MCQs, NEET JEE, give reasons, इसमें सब में ये क्वेश्चंस आते हैं. ओके, ये भी हो गया ना सबका. ओके, now see, we'll do chemical properties. Chemical properties of carboxylic acid, reaction involving breaking of OH bond. अभी 4 टाइप के रिएक्शंस है यहाँ पर. चार टाइप के केमिकल रिएक्शंस है यहाँ पर. एक है ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, दूसरा है ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, तीसरा रिएक्शन इन्वॉल्विंग एंटायर COH ग्रुप, और चौथा ओनली अल्काइल ग्रुप विल बी इन्वॉल्व्ड एंड नॉट द COH ग्रुप. 4 टाइप के रिएक्शन समझे. एक रिएक्शन है देयर इज ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड. दूसरे टाइप के रिएक्शन है ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड. तीसरा जिसमें पूरा COH पार्ट लेगा, और चौथे वाले में कि सिर्फ अल्काइल पार्ट लेगा, COH नहीं पार्ट लेगा. So there are 4 types of reactions. Okay. Now see, first type will do where there is breaking of OH bond. Now there are 4 reactions. Acid reacts with metal, acid reacts with base, acid reacts with carbonate, acid reacts with bicarbonate. अभी किसी ने, I don't know lower class whether you all have done or no,
any acid reacts with metal, it liberates hydrogen gas. Acid reacts with base, forms salt and water. Acid reacts with carbonate, forms salt, water and carbon dioxide. Acid reacts with bicarbonate, again it forms salt, water and carbon dioxide. तो ये नॉर्मल एसिड की बिहेवियर है, एसिड की प्रॉपर्टी है. तो तुमको एग्जाम में पूछा ना, गिव एनी टू एग्जांपल और डू रिएक्शन शोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो ये चारों में से कोई भी एक दे सकते हो. आई विल रिपीट द रिएक्शन इज विद, एक है रिएक्शन विद मेटल, दूसरा बेस, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. अभी मेटल में वो ही मेटल जो ईएमएफ सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, रिएक्टिव मेटल्स, हाईली एक्टिव मेटल्स, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. ओके, सो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल. अभी देखो इसके एग्जांपल्स करेंगे. फॉर्मिक एसिड अगर एक्टिव मेटल लाइक सोडियम या पोटेशियम या जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो it will form sodium salt and liberate hydrogen gas. फॉर्मिक एसिड कैल्शियम या एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो बैलेंसिंग खाली चेंज हो जाएगी. हमको कैल्शियम 1 टाइम लेना है पर ये 2 टाइम्स लेना है. यहाँ पे दोनों 2 क्यों लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगा तो बैलेंसिंग के लिए रेशियो 1:1 होना चाहिए. और यहाँ पे 2:1 क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड याद है ना. ओके, कैल्शियम एसिडेट मिलेगा एंड हाइड्रोजन गैस. अभी देखो कंटिन्यूअस रिएक्शन आ सकता है. अ कंपाउंड ए react with calcium and form B. B on heating gives acetone. So what is your A? Question समझा? A reacts with calcium and gives you B. B on heating gives acetone. So what is A? नहीं ज़ेन, एसिटिक एसिड ही है. एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड आयशा. एसिटिक एसिड react with calcium, we get calcium acetate, and calcium acetate on dry distillation will give you acetone. ठीक है. अल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशंस में किए थे हमने कि अगर सिमेट्रिकल कीटोन चाहिए तो कोई भी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अदर एसिड हीट करो. पर अगर कैल्शियम एसिडेट के साथ हमने कैल्शियम फॉर्मेट हीट किया होता तो हमको अल्डिहाइड मिलता. पर खाली कैल्शियम एसिडेट को हीट करोगे तो एसीटोन मिल जाएगा. ठीक है, इसमें से CaCO3 निकल जाएगा. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो जाएगा. कम ऑन, राइट डाउन दिस रिएक्शन विद मेटल नाउ. केमिकल प्रॉपर्टी हेडिंग दो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड. और उसमें पहला है एसिडिक प्रॉपर्टीज में विथ मेटल, और मेटल के अंदर 2 एग्जांपल. फिर हम बेस के साथ करेंगे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट. तो 4 रिएक्शन करना है ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड में. अभी लिखो, लिख के करना है. रिएक्शंस विल ऑल राइट, ओरली नहीं करेंगे, वो सब थियरी था इसलिए आई टोल्ड यू टू टेक द स्क्रीनशॉट्स. रिएक्शंस वी हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस. जेन, अगर हमने एसिडिक एसिड को कैल्शियम से रिएक्ट किया तो कैल्शियम एसिडेट मिला. अभी इसमें से CaCO3 निकाल दोगे तो एसीटोन बनेगा. ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था. ओके, कीटोन के प्रिपरेशंस में रेफर करना है वापस से.
चलो सब लोग ने लिखा इतना? ओके अभी नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, ये मेटल के साथ था। हाँ सेम रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ आ सकता है। अगर एल्यूमिनियम आएगा तो ये 3 टाइम्स लेना पड़ेगा, मतलब 6 नहीं, एल्यूमिनियम 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, 3H2 बन जाएगा फिर। सो एसिड विल बी 6 टाइम्स, एल्यूमिनियम विल बी 2 टाइम्स। ओके तो ये पूरा कवर करके हम लोग को यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, ट्वाइस करके 2, यहाँ पे आगे 2 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। सो यू हैव टू बैलेंस। ओके नेक्स्ट वन, with base. When acid reacts with base, it forms salt and water. So very simple reaction. Acid plus base gives you salt and water. Acid plus base gives you salt and water. ये एसिडिक एसिड है, सोडियम एसिटेट, फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट. Okay, so when acid reacts with base, it forms salt and water. Very simple reactions these are. और क्वेश्चन आएगा, give any two acidic properties, any two reaction showing acidic properties of carboxylic acid. तो चारों में से कोई भी दो दे सकते हो. ओके acid reacts with metal form salt and hydrogen gas. Acid reacts with base form salt and water. ओके हाँ चलो नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट्स विद, हाँ अच्छा याद रखो NaOH को कॉस्टिक सोडा बुलाते हैं, और KOH भी सेम रिएक्शन देगा. हाँ तो NaOH इज कॉस्टिक सोडा एंड KOH इज कॉस्टिक पोटैश. तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH एंड कॉस्टिक पोटैश मतलब KOH. यहाँ पे लिख दो NaOH और KOH. KOH इज कॉस्टिक पोटैश. अच्छा अभी ये है नेक्स्ट वन, NaHCO3, इसको क्या बुलाते हैं? व्हाट इज NaHCO3 कॉल्ड? कॉमन नेम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. व्हाट इज कॉमन नेम फॉर दिस? या मैं विश करेक्ट, वेरी गुड. ओके या आंसर इज बेकिंग सोडा. व्हेन एसिड, या बेकिंग सोडा साथ, when acid reacts with sodium bicarbonate, it will give you salt, water and carbon dioxide. Salt, water and carbon dioxide. चलो कर कंप्लीट करो. Formic acid, sodium formate, acetic acid, sodium acetate. Don't forget to write names, common name, IUPAC name. Sodium acetate, sodium ethanoate, and sodium formate, sodium methanoate.
ओके हुआ कंप्लीट। डन। अभी लास्ट वाला करना है सोडियम कार्बोनेट के साथ। व्हाट इज सोडियम कार्बोनेट कॉल्ड? व्हाट इज सोडियम कार्बोनेट कॉल्ड? हाँ शादाब करेक्ट। सोडियम कार्बोनेट, हाँ Na2CO3। महविश क्या बुलाओगे उसको? व्हाट इज इट कॉल्ड कॉमनली? हाँ करेक्ट। आयशा करेक्ट, जीशान करेक्ट। वॉशिंग सोडा, या वॉशिंग सोडा। मृणाली करेक्ट। व्हेन फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। ओके अभी यहाँ पे देखो 2 बार लेना पड़ेगा, वहां पे एक ही बार था बैलेंसिंग के लिए। तो इट विल गिव यू सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में सेम, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बेकिंग सोडा भी वैसे ही रिएक्शन देता है, वॉशिंग सोडा भी सेम रिएक्शन देता है। ओके चलो नेक्स्ट वाला देखो। अभी रिएक्शन इन्वॉल्विंग हमने क्या था, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। अभी रिएक्शन इन्वॉल्विंग एंटायर OH बॉन्ड लेंगे, CO बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके सो नाउ विल डू रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन। वो भी सारे इजी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमने किए थे ना उसके उल्टे है। एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर्स और अमाइड्स, इनमें अगर तुमने वाटर डाला तो एसिड बन जाता है। अभी एसिड से इनको बनाएंगे, उल्टे रिएक्शंस करने हैं सब। एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, अमाइड और एस्टर्स, चारों को हम प्रिपेयर करेंगे। ओके सो नाउ सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शंस आर रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। अभी इसमें मैंने बोला ना एनहाइड्राइड, क्लोराइड, ये सब बनाना है। ओके esters or amides, we are going to make all of them. So here there are 6 reactions with thionyl chloride. अभी 3 रिएक्शन तो एसिड क्लोराइड बनाने में ही चले जाएंगे। विथ थायोनिल क्लोराइड PCl3 PCl5, फिर एनहाइड्राइड प्रिपरेशन, एस्टर प्रिपरेशन एंड अमाइड प्रिपरेशन। ठीक है ना। अभी जैसे अल्कोहल का रिएक्शन हम कैसे करते थे थायोनिल क्लोराइड का, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। ओके व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल तो कैसे बनता, सॉरी व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड तो कैसा रिएक्शन था, ये OH निकल के यहाँ पे Cl लग जाएगा एंड विल गेट SO2 NHCl। एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्शन होगा यहाँ पे, पर ये एसिड क्लोराइड बनेगा। वहां पे अल्काइल हाइड्राइड्स बनता था, यहाँ पे एसिड क्लोराइड। और जब भी HCl बाय प्रोडक्ट है तो एरो पे pyridine लेना है बेस। सो वी गेट एसिड क्लोराइड, सल्फर ऑक्साइड एंड HCl। तो ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्माइल क्लोराइड। अभी एसिडिक एसिड लोगे तो क्या मिलेगा, कंप्लीट करो। सो दोनों रिएक्शन लिखो, कैन कंप्लीट द रिएक्शन। फॉर्माइल क्लोराइड का IUPAC नेम है मीथेनॉइल क्लोराइड।
हाँ करेक्ट ओम, जैन करेक्ट, आयशा करेक्ट। एसिटाइल क्लोराइड और इथेनॉइल क्लोराइड एंड SO2 एंड HCl। यहाँ पे बेस pyridine, हाँ pyridine या NaOH भी ले सकते हो, पर ज्यादातर वी टेक pyridine, ठीक है ना। तो सेम रिएक्शन लाइक अल्कोहल, पर वो अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड था, यहाँ पे एसिड और थायोनिल क्लोराइड है, so we get acid chlorides instead of alkyl halides. Now same we'll do reaction with PCl3. अभी रिएक्शन विद PCl3 अल्कोहल की तरह ही, ओके। यहाँ पे PCl3 के साथ याद है तुम लोग को इथेनॉइल क्लोराइड है साथ, इथेनॉइल, और एसिटाइल क्लोराइड कॉमन नेम है इथेनॉइल क्लोराइड, IL नहीं YL, इथेनॉइल क्लोराइड IUPAC नेम, ओके। IC एसिड निकाल के YL क्लोराइड, बस खाली उतना लगाना है एसिड क्लोराइड्स में। अभी देखो PCl3 के साथ रिएक्ट करोगे तो 3 मॉलिक्यूल, ये तो एसिड क्लोराइड बनेगा यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या होगा कोई बताएगा? व्हाट विल बी द बाय प्रोडक्ट आउट हियर? हाँ वेरी गुड आयशा, क्या करेक्ट इट इज? नहीं जैन, नहीं साद, वो PCl5 के साथ मिल रहा है तुम लोग जो लिख रहे हो। PCl3 के साथ क्या प्रोडक्ट था? 3H, 3H, 3O और एक फॉस्फोरस, तो ये हो जाता था H3PO3, ओके। ये 3 क्लोरीन के यहाँ पे लग जाएंगे और 3 OH निकले, तो 3 OH और एक फॉस्फोरस, तो इसलिए हमको ये 3 टाइम्स लेना है। और PCl5 के साथ हम 1 टाइम ही लेते हैं, और हियर वी टेक 3 टाइम्स, ओके। तो ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्माइल क्लोराइड। सेम रिएक्शन यू ऑल राइट विद एसिटिक एसिड, कम ऑन कंप्लीट बोथ। हाँ हाइपोफॉस्फोरस एसिड करेक्ट, फॉस्फोरस हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक, H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड, तो हाइपोफॉस्फोरस बोल सकते हैं। फॉस्फोरिक वो हो जाएगा H3PO4, और ये मालूम है या याद रखना है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड डाइबेसिक एसिड है, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग करेंगे। हाँ आयोनिक इक्विलिब्रियम में सब आएगा ये सब। सो इट इज अ डाइबेसिक एसिड, नॉट अ ट्राइबेसिक एसिड, सो यू हैव टू रिमेंबर इट इज नॉट अ ट्राइबेसिक एसिड, इट इज अ डाइबेसिक एसिड, ठीक है। और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ट्राइबेसिक है, बट H3PO3 फॉस्फोरस एसिड इज डाइबेसिक एसिड, ओके। ये डाइबेसिक है और H3PO4 लिखोगे तो ट्राइबेसिक हो जाएगी। ऐसा क्यों वो भी समझाऊंगा बाद में, व्हाई इट इज लाइक दैट। इथेनॉइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, नाम लिखते रहो। चलो नेक्स्ट करते हैं, एक खाली करते हैं और PCl5 के साथ, तो एसिड क्लोराइड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमको करना है एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स और अमाइड का प्रिपरेशन नेक्स्ट क्लास में। ओके चलो नेक्स्ट वन विल डू विद PCl5। अभी बाय प्रोडक्ट हो जाएगा POCl3 एंड HCl, ओके। POCl3 and HCl will be the byproduct. Formic acid, formyl chloride. Acetic acid, acetyl chloride.
Can't copy down this fast.